हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया है? हाय प्रथमेश, हाय अंजलि, गुड इवनिंग ऋग्वेद, गुड इवनिंग शिवांग, गुड इवनिंग सानिका। ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म करा था, हम लोग आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का बुकलेट आप कंप्लीट कर रहे हो अपने एंड पर। ठीक है, सो आई थिंक some test has also been announced for students depending upon the date they would have joined in. Now, based upon how we would have progressed, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के वीडियो लेक्चर्स देख लिए हैं एंड नोट्स बना लिए हैं। ठीक है, सो एज अ quick discussion over the topics that were or that have been covered, लेट्स गो वन बाय वन एंड फिर उसमें आपके जो डाउट्स रहेंगे वो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। सो let me start with the list of the key topics that are there. Now, the introductory part or the initial part of the chapter was based on this earlier methods of classification, I should say. Now, in this, we did study or talk about couple of methods, right? So there was this डोबेनियर्स ट्रायर्स, अभी स्पेलिंग तो मुझे याद नहीं है इनकी, DOBEREINERS. I don't know if that is the correct spelling. There was this Dobeniers triad. There was this Newland's law of octaves. Then there was this Lothar-Meyer's curves. And there was another French scientist, उसका तो मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है. And if I remember correctly, there was Mendeleev's classification as well. Now, in सब के अंदर, you would have noticed that there was a basis of classification. Okay, the basis was typically atomic weight. That based on the atomic weight of elements in the increasing order, they would arrange the elements, and then there was some kind of logic. Okay, different methods had their own set of logics. Dobenier triad mein the logic was based on the fact that if the atomic weight of three elements are in arithmetic progression, then they would have similar properties. Newland's laws of octave was lesser based on logic, but more based on the philosophy of music.
in which it was about that elements have repetition. So like notes of music have repetition. उसी तरीके से elements have repetition in their properties after a certain interval. Then Lothar-Meyer's curve was a better and a more scientific approach towards classification, in which the basis was still atomic weight, but then the logic which he thought of was slightly more scientific, slightly more detailed, in which he measured the atomic volume of different elements. Although his measurements themselves were not very accurate, they were based upon certain crude methodologies in which he used to solidify or liquefy substances, and based on then the calculations of density, he used to come up with the data of atomic volume. And he did plot atomic volume of these elements with their atomic weight, and found out that when he uh, drew this graph, that elements with similar properties occupied similar positions. Now this was something which was a good observation, good starting point. However, still had a lot of drawbacks with it. It was only able to explain a trend for a few set of elements, but lacked the robustness to explain the trend of properties over a larger set of elements, especially D block elements explain नहीं कर पाया था. Then there was Mendeleev's classification, which was even better and more clean, I should say, because he adopted a very simple approach in terms of classifying elements in a table in rows and columns. So मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन है उसका थोड़ा डिटेल्स आपसे एक्सपेक्टेड रहता है याद रखने के लिए. सो इफ यू वुड हैव नोटिस्ड इन द video lectures and the explanations also, I would have spoken about how Mendeleev classified elements on the basis of their atomic weight. And the logic which he used was that he would create a table in which he would fill the elements in a row in an increasing order of their atomic weight, and elements with similar chemical properties, particularly valency के ऊपर focus था मेंडलीव का. Elements with the similar valency were then grouped together in same columns, right? And as a result of this exercise, he was able to create a table of 8 columns to start with. Okay, a 9th column was added much later when the noble gases were discovered. However, these 8 columns also which he created in the beginning were subdivided by him. Okay, out of these 8, he subdivided the first 7 columns into sub-column A and sub-column B, because what he observed was that despite the valency being similar between certain elements that were in a column, they still had quite different other chemical properties. So for example, in the first column, he got elements like sodium, potassium, along with elements like copper, silver, which were collectively having a common property of showing a valency of 1 when combining with, say, halogens or oxygen. But they had, like sodium and potassium had
quite a different set of chemical properties as compared to copper and silver. So what he did was that within this first column, he created these two sub columns or subgroups. So basis this, he was able to classify a lot of elements with some minor problems here and there, but a very good and an interesting classification came out as a result. And one of the achievements which Mendeleev has to his credit was that he believed in this method of classification quite thoroughly, and as a result was able to predict certain elements that were not discovered yet. So he found out that in the increasing order of atomic mass or atomic weight, when he's filling the elements, there are certain positions that are not being filled by certain elements. So he left those positions vacant and predicted that in future we should be able to discover certain elements which would fill these positions in his table, highlighting or fitting in the increasing order of atomic weight and matching with the chemical properties of the elements in the same column. So these were the older and the earlier methods of classification. I hope आप लोगों ने इनके notes बना लिए होंगे, इनकी details capture कर ली होंगी. Now I would want to take doubts and do discussion over this particular subtopic before moving on to the next one. All right, now एक एक करके लेंगे. So आप लोगों ने लिख दिए हैं चैट पर, मेरे पास में बहुत सारे डाउट्स आ गए हैं. However, I will not be able to go through them one by one. So what you can help me with is I'll unmute you, and based on that, if you had any doubt in this particular section, तो आप मुझे पूछो. ठीक है, you can raise your hand. Sir, actually doubt is not from this topic. Sir, doubt is from atomic structure. Sir, magnetic moment क्या होता है sir? Magnetic moment is a response to an external magnetic field. So when you, let's say, have a particle and you throw it in an external magnetic field, Yes sir. ठीक है, तो वो कैसा response देगा, कैसा deflection show करेगा, that is what in very simple terms magnetic moment is. Okay. So sir, like basically हम इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें सर? बिकॉज फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव के जो लास्ट के सम है उसमें यूज किया गया ये टर्म मैग्नेटिक मोमेंट. So आपने पढ़ा होगा ना, मतलब आपने लेक्चर मिस कर दिया क्या बीच में जब हम एक्चुअली मैं अनदर बैच से सर मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो आई डोंट नो कि वेदर वो हुआ है या नहीं सर. लाइक हो गया बाबा, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हो गया. यू शुड देन वॉच द रिकॉर्डिंग्स, अदरवाइज आप बीच के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस कर जाओगे. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का, देखा है कभी ये? नो सर. हाँ, तो फिर देन देयर इज अ गैप इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स itself. तो आप एक बार रिकॉर्डिंग्स देखो, यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी सिंपल कांसेप्ट. यस सर. हाँ यश बोलो. सर मुझे भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाउट था कि सर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? काउंटिंग करके, नंबर ऑफ हैंडशेक्स काउंट करने होंगे ना, जैसे वैसे ही. सर जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी है और अनपेयर्ड भी है. हाँ, तो जो सेम स्पिन के हैं बस उनके बीच में एक्सचेंज करना ना, और फिर ऐड कर देंगे दोनों. हाँ. ओके सर. तो और वो जो लास्ट में हम ट्रांजिशंस के बात कर रहे थे जिसमें कुछ ट्रांजिशन फॉरबिडन है, उनमें एमएल कैसे निकालेंगे ट्रांजिशन का? आपको देंगे इंफॉर्मेशन, दे देंगे. हाँ, ओके. you would be
given the information that यहाँ से यहाँ transition हो रहा है, तो they will mention the orbitals when then you have to decide whether it is तो जैसे alpha or px का फिर वो -1 होगा या 1 होगा, क्या डिसाइड करेंगे? फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आप करके देखना। ओके ठीक, all right, now all right then पूर्णा का डाउट है, इन लोथर-मायर कर्व्स व्हाई डू अल्कली मेटल्स अकर एट पीक? सो if you are trying to think about that why alkali metals are occupying the peak, so before that I would kind of give you the context that the key takeaway from Lothar-Meyer's curve is to observe the pattern of which elements are occupying which position, rather than getting to understand that why is certain element at a lower position, why is certain element at a higher position. Now, even if you try to explore this as a question that why alkali metals are at peak, then maybe it is because the atomic volume corresponding to alkali metals is larger. ठीक है, जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अभी, तो उसमें आप देखोगे कि इन द टेबल जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे विद इन अ सेम रो द साइज डिक्रीजेस। ठीक है, जो अल्कली मेटल्स होंगे उनका साइज बड़ा होगा एंड जो हैलोजेंस रहेंगे उनका साइज रिलेटिवली छोटा रहेगा। तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी वैसे मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम बाद, however you can think or understand this as the reason। ठीक है हाँ, now based on this अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं towards the next subtopic। So the next subtopic was after these earlier methods of classification, it was Moseley's experiment which led to the development of the modern periodic table. So in Moseley's experiment, I spoke about the methodology which Moseley used, and this is something which was based on our understanding of Bohr's model of atom as well. So यहाँ पर observe करना that as part of Moseley's experiment, or if you remember hydrogen ka spectrum, if you remember Bohr's model, so in that the energy gap between two orbits जिनके बीच में electron excite या de-excite हो रहा था, that corresponds to the energy of the photon that is emitted if it is a de-excitation. So this energy of photon, which can be written as h nu, can be written as 13.6 into z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. And as you can see that this z square is proportional to nu, or you can see that z is proportional to root over nu. So this was something that was well established for single electron system as per the Bohr's model. And this observation was something which Moseley also concluded when he did his experiment of analyzing the spectrum of elements. Now, the thought process that came with Moseley's experiment was that he wanted to classify elements by studying a very unique and fundamental property associated with atoms.
Now there are many unique and fundamental properties associated with atom, and one such property is its spectrum. जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है, different atoms, as in different elements, have their unique spectrum. It is like their signature. So given that context in mind, Moseley was of this mindset that if I study the spectrum, if I study the radiations that are emitted by the atom of an element, I should be able to understand better if there is a pattern, or if there is a basis on which classification of elements can be done. And what he found out was that the frequency, okay, or the square root of the frequency of particular radiations of different elements, when he tabulated, was coming out to be proportional, directly proportional to their atomic number. And this is something then he presented as the modern periodic law, that rather than using the atomic weight, we should use atomic number as a better basis, as a better indicator of classifying the elements. Now, based on this, you would have studied some details of Moseley's experiment, in which I would have spoken about characteristic X-rays, hard X-rays, soft X-rays, and in that I would have talked about that why X-rays were chosen by Moseley for comparison, because of the fact that they were easy to locate, easy to identify in the spectrum. And then based on that, we would have done one or two questions also, which would have talked about the graph between square root of frequency and Z, the atomic number. Okay. So इसमें, if you remember how we approached, so if you remember the graph and the question, ये जो relationship है रूट न्यू वर्सेस z का, ठीक है, इसमें if we convert this into a mathematical equality, then it comes up with the two constants, and these constants a and b, ठीक है, they depend upon the type of radiation being analyzed. So if let's say K alpha radiation was being analyzed, then this graph of root nu versus Z would have a particular y-intercept and a particular slope. But if say K beta was being analyzed, okay, then this graph would still be a straight line, but maybe with a different slope, with a different y-intercept. Okay. And I also helped you identify that amongst the graphs that were there, which one would correspond to K alpha, which one would correspond to K beta, given the knowledge of spectrums, the spectral series. That K alpha would correspond to the first line, whereas K beta would correspond to the second line, would have higher frequency, higher energy as compared to K alpha. Okay. So this was something that was presented by Moseley, and based on this, you would have also
seen a question or two in which, let's say, frequency का data was given for an element, and then you had to find the frequency का data for certain other element. So you use this mathematical relationship to come up with that. Post Moseley's experiment, we went on to describe the modern periodic law and provide the structure of the modern periodic table. So modern periodic table, okay, I hope you all have access to the periodic table. If not, then I would recommend that you definitely take a print or a chart and stick it somewhere in your room on a wall which is visible to you, because going forward we will be referring to the periodic table a lot. So if you have that in front of you handy, you will be able to remember the elements and their locations in the table much better. Now, while discussing the topic of modern periodic table, we did get into the skeletal structure and how the modern periodic table was designed. So this becomes very important, very crucial for students to be able to create a mind map of how the periodic table is and answer any hypothetical questions also if certain tweaks or certain modifications were to be done to the periodic table. Okay. So actual periodic table किस तरीके से दिखना चाहिए? If you remember, there should be S block, then there should be F block, then there should be D block, followed by a P block. ठीक है, rough skeletal structure मैंने आपके सामने draw किया है. However, the fact that this made the table too long, ठीक है, this F block is taken out and drawn अलग से outside the table. ठीक है, that is done mostly from the point of view of convenience, ताकि एक given normal sized paper के अंदर we have the periodic table. Then while discussing the modern periodic table का skeletal structure, I would have spoken about the number of columns that are there in each block and what that represents. So what is that represents S block or D block or P block? What is that unique property of an element that it is present in S block or in D block or in P block? Can anyone answer? Ha, right, Hardik. So the last electron of the element, when we are writing the electronic configuration, the last element, so the last electron जिस particular orbital में fill होगा, ठीक है, the element will belong to that particular block. Having told this, I would have definitely spoken about the position of lanthanum and actinium.
as per the normal rules of electronic configuration, lanthanum should have been part of the F block, but because its configuration is an exceptional configuration in which the last electron gets filled in the D block, so lanthanum is technically present in the D block. Same goes for actinium. ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर याद रखना. ठीक है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है? एक्टिनियम का, right, this is 57 and this is 89. ठीक है, so this is something you must remember. Then after understanding about the blocks, the next thing that I would have helped you understand is the columns, the number of columns that are there in each block, and that comes as a natural extension to the point that we just understood, that last electron जिस orbital में fill होगा, that will be the block of the element. So for example D subshell के अंदर 10 electrons fill हो सकते हैं. So you would notice that in the D block there are 10 columns. In the P block, P subshell can have a maximum of 6 electrons, and that is why the P block will have 6 columns. F subshell can have a maximum of 14 electrons, and that is why it has 14 columns. And for the S block, you have just 2 columns corresponding to the 2 electrons that could be filled in the S subshell or S orbitals. Now, while filling the elements in a row by row manner, we go in an increasing order of atomic number, and यहाँ पर in the beginning itself you would notice that hydrogen and helium kind of pose exceptional properties as compared to the blocks in which they are present. Like hydrogen is something which is found to show non-metallic properties, but still is sometimes placed with the metals in the S block. Similarly, helium, which has its last electron getting filled in the S orbital only, is not written in S block. It is actually written in the P block because its properties, they match more with the noble gases, with the inert gases. ठीक है, so ये कुछ exceptions धीरे धीरे आपके सामने आते जाएंगे जो हम highlight करते जाएंगे, which are modifications that have been done to make more sense rather than just following a particular logic in a very rigid manner. Then talking about the number of rows in the periodic table, there are a total of 7 rows till now. Okay, and these rows have a general configuration corresponding to how electrons get filled in them. So this is something that I would have highlighted again in the video basis the observation of configuration of electrons in each of these rows, that if you have to fill an element in say nth row, ठीक है, let's say आप यहाँ पे 7th row से start हुए, 7th row में आपने elements fill करोगे, तो यहाँ पर जो पहला element रहेगा
ठीक है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 7s में आएगा। ठीक है, 7s1 7s2 फिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा करना, सीधे एंड में आना। ठीक है, you come to the end of the row and towards the end you will find that NP electrons getting filled up. Before that, just before that, you will have N minus D electrons getting filled. Just before that, you will have N minus 2F electrons getting filled up, and so on, so forth. So in a given row, this comes out as a configuration in which electrons get filled up as we go from left to right. Okay. Basis this, we were able to get a good grip on the skeletal structure, okay, of how the table is, and based on that you would have been able to answer some of the questions that I would have asked in the class, wherein I would have asked you to locate the row number or the column number of a particular element. Okay, for example, let's say if I ask you a question that locate the row number and the column number of atomic number, say 63. So आप मुझे आंसर दो, where would atomic number 63 be present? What will be its row number and column number in the table? And don't look at the table and try and answer. Okay, you should be able to answer it by thinking about the skeletal structure of the table itself. हाँ, एफ ब्लॉक सही गैस करा लक्ष्मी आपने, हार्दिक आपने भी एफ ब्लॉक सही गैस करा, बट थोड़ा और डिटेल्स, विच रो एंड विच कॉलम? Now technically speaking, sixth row is correct. The element will be present in the sixth row. ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करा मैंने यहाँ पर सिक्स्थ रो? सो इफ यू वुड रिमेंबर नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, देन 54 के बाद में 54 प्लस 32 कितना होगा? 86. ठीक है, these will be the atomic numbers of the last elements in the respective rows. ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ रो खत्म हो गया 54 पे और सिक्स्थ रो खत्म होगा 86 पे, तो 63 सिक्स्थ रो में आना चाहिए। तो यहाँ से आपने गेस कर लिया होगा दैट रो विल बी सिक्स्थ। अब कौन सा कॉलम, तो आपने काउंटिंग शुरू करा होगा। नाउ द कैच इज दैट एफ ब्लॉक का कॉलम नहीं डिफाइन होता है। ठीक है, आपको एफ ब्लॉक के लिए अलग से बोलना पड़ेगा, बिकॉज कॉलम्स और कॉलम नंबर्स आर ओनली डिफाइंड फॉर एस, डी एंड पी ब्लॉक. So this is column 1, column 2, and then third starts from D block only. Third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8, 9, 10, 11, 12 तक यहाँ जाता है,
ठीक है, then 13, 14, 15, 16, 17, 18. This is how the column numbers go. So F block का कोई column number नहीं होता. However, you can still locate it within the F block. आप यहाँ पे notice करोगे तो 6th row में पहला element का atomic number 55, second का 56 होगा within the S block. And then F block में अब आप आगे कंटिन्यू करोगे, लेकिन आपको एक कैच ध्यान में रहना चाहिए कि लैंथेनम जो कि एटॉमिक नंबर 57 था वो डी ब्लॉक में है, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक यहाँ 58 से शुरू होगा एंड नाउ यू विल डू द काउंटिंग विद इन दिस दैट 58, 59, 60, 61, 62, 63. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6th column within the F block, you can say. ठीक है, so it will be a part of the lanthanides. ठीक है, technically it will not have a column number, but yeah, you can still mention that where it would be within the F block also. ठीक है, F block कैसे पता चला? Because यहाँ पर 6th रो में आपको आकर ये हाईलाइट होगा ना, दैट जब आप यहाँ पर 5th रो फिल कर गए, 54th एटॉमिक नंबर फिल हो गया 5th रो में, तो आप 6th रो में जब आओगे तो 6th रो में 6s1 और 6s2 के बाद में, ठीक है, 6s1 और 6s2 के बाद में 4f भरेगा, उसके बाद 5d एंड 6p का नंबर आएगा, तो 4f पहले भरेगा तो the element would be in the F block. ठीक है, so this is something which takes its own time. ठीक है, एक बार फर्स्ट टाइम पढ़ने में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, बट हाँ विद गिवन मोर practice students are able to locate where these elements would be. ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर ओनली. ठीक है, सो हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. ऑलराइट, आप लोगों को बुकलेट दिख रहा है? नहीं, एक्चुअली सॉरी, मैं बैड, अभी नहीं दिख रहा होगा. गिव मी 1 सेकंड, आई विल जस्ट share the full screen. ठीक है, all right, now as part of discussion हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे. ठीक है, so based on this skeletal structure, ठीक है, let me ask you a couple of questions. कहाँ गया? सो इसमें 10th क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा. दिस इज समथिंग दैट वी डिड प्रैक्टिस as part of the recording only. What you can try and give an answer to is
क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आंसर करने की कोशिश करना, ट्रिकी क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो काफी स्टूडेंट्स ने काफी आंसर दिए हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आई वुड रेकमेंड एज द better method of answering this question is you first calculate the atomic number। ठीक है, क्योंकि जितना आप नीचे जाते जाते हो ना पीरियोडिक टेबल में, उतने ही थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस आने लगते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में। सो यहाँ पर what I would recommend is you first calculate the atomic number based on this configuration। कितना आ रहा है एटॉमिक नंबर? क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 14 60, 62 68 70 71। so this is basically atomic number 71। now you try to think where the atomic number 71 would be। 80 कहाँ से आ गया लक्ष्मी? 71 नहीं समझ में आया। so now अब ये 71 एलिमेंट कहाँ पर होगा? so if you remember now the periodic table, so इसमें ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कुछ कुछ एलिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो ये एक्टिनाइट के बारे में मैंने बोला था आपको कि और इनफैक्ट ये लैंथेनाइट का ये 58 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप काउंटिंग करोगे यहाँ पर तो 71 will come at the end of the F block, last of the lanthanides। ठीक है, so your correct answer would be F block। ठीक है, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जाते तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कैसा रहता, क्योंकि यहाँ पर आप नोटिस करते 6s2 6p इसका 0 है, 6p में इलेक्ट्रॉन्स भरे नहीं। 5d में एक इलेक्ट्रॉन है, 5d1 एंड 4f14 है। ठीक है, सो what many students would have thought is the fact that पहले 6s पूरा भर गया, फिर 4f पूरा भर गया, फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में आ रहा है। ठीक है, सो दिस शुड हैव बीन अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जिसने लॉजिक ये वाला पकड़ा होगा दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन गेट्स फिल्ड इन द ऑर्बिटल, दैट इज द ब्लॉक। ठीक है, बट यहाँ पर एक्चुअली ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं एफ ब्लॉक में। एक्चुअली यहाँ पर ये लैंथेनाइट में गड़बड़ आ जाती है कि लैंथेनाइट में डी इलेक्ट्रॉन पहले भर जाता है, एक डी इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइट में पहले भर जाता है और उसके बाद यहाँ पर फिर एफ इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू होते हैं। सो वो जो 5d1 लिखा था वो एक्चुअली लैंथेनाइट के टाइम पे भर गया था, उसके बाद एक्चुअली ये 4
F इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू हुए. So this would have been the doubt if you would have gone by that logic of filling of electrons. ठीक है. हाँ हर्ष बोलो. Raise your hand. हाँ. हेलो सर. हाँ बोलो. सर तो हम बेसिकली यही करते हैं ना, n उसका n-1 n-2, तो फिर सर इधर 6 में f 4f तक गया बट 3g नहीं होता, तो फिर हमारा आंसर 4f मतलब f ब्लॉक हो जाएगा. हाँ हाँ, लेकिन इसमें आप नोटिस करोगे कि 5d भी था ना. हाँ So सर. 6s2 4f14 5d1. ठीक है. एंड 6p में कुछ दिया हुआ नहीं है तो 6p 0 में लिख देता हूँ. ठीक है. तो एक्चुअली इसमें जो एक थॉट आएगा वो ये आएगा कि पहले 6s भर गया तो 6s का तो नहीं है ये इलेक्ट्रॉन, मतलब s ब्लॉक का नहीं है. आप 4f भी पूरा भर गया, आप बोलोगे 4f का भी नहीं है. आपको ऐसा लगेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में भरा, तो आप गलती से d ब्लॉक बोल सकते हो. बट इसमें द थिंग इज दैट यहाँ पे नीचे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं एंड ये 5d जो था ये एक्चुअली लैंथेनम के टाइम पे भर गया था 5d का एक इलेक्ट्रॉन. ओके सर. फिर उसके बाद 4f भरने शुरू हुए. तो बेटर इस क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका है दैट यू लोकेट द एटॉमिक नंबर, देन यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू आंसर दिस. ओके सर. ठीक है. ऑल राइट, देन 13th क्वेश्चन आंसर करने का कोशिश करो. आंसर द 13th क्वेश्चन. Maybe you will not be able to get the formula, but let's see if you are able to get the logic. नहीं सुमित, ऐसा नेसेसरी नहीं है. आप कुछ डाउट पूछ रहे हो? यश, यू हैव रेज्ड योर हैंड्स. ऐसे बाय मिस्टेक. अच्छा, शेखर आपको कुछ डाउट पूछना है? सर एक्चुअली आपने वो वीडियो में टेल्यूरिक हेलिक्स को मेंशन नहीं किया था, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं मीन सर मतलब वो पढ़ा है. हाँ मैंने नहीं पढ़ा है, अच्छा नहीं लगता मुझे. सॉरी सर. हाँ हर्ष, तुम्हें कुछ कहना है? नो सर, नो सर. सर वो लो हैंड करने के लिए भूल गए सर. अच्छा, सो क्वेश्चन का मीनिंग कैसा है दैट क्वांटम नंबर ग्रेटर देन n आर नॉट अलाउड. ठीक है. इसमें रो नंबर नहीं बोला है. ठीक है, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज रो नंबर विद क्वांटम नंबर. ठीक है. क्वांटम नंबर n से ज्यादा अलाउड नहीं है. तो कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं? सो इफ यू हैव टिल n क्वांटम नंबर, ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फॉर अ गिवन, ठीक है, इनफैक्ट लेट मी काइंड ऑफ टेक दिस फ्रॉम हियर, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ. So for a given shell, कितने possible electrons can be filled?
for a given shell n, maximum number of electron is 2n square, right? तो आपको allowed shell कितने हैं? आपको 1 allowed है, 2 allowed है, 3 allowed है. कहाँ तक allowed है? ये n तक allowed है. तो 1 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 1 into 1 square. सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 into 2 square. थर्ड शेल में 2 into 3 square and so on so forth. So टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 2 मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, सॉरी 2 मैं बाहर कॉमन ले लूंगा, तो इट इज समेशन ऑफ n स्क्वायर फ्रॉम 1 till n. ठीक है, अब ये समेशन ऑफ n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला शायद आपको नहीं आता होगा. आपको शायद समेशन n का फॉर्मूला आता है. समेशन n फ्रॉम 1 to n is n into n plus 1 upon 2. बट आपको शायद समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता है. समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So that is what is being used here. That summation n square is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. So this matches with the C option. ठीक है, आप सीखोगे. ये जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख के बताया है, this is something that you will study in a chapter called sequence and series. मैथ्स में आएगा ये, जनरली क्वाड्रेटिक के बाद में आ जाता है. अभी आपका क्वाड्रेटिक शुरू हुआ क्या मैथ्स में, या ट्रिको चल रहा है? अच्छा, इनइक्वेशंस पहले पढ़ा रहे हैं. ओके, हो सकता है पैटर्न चेंज कर दिया हो. ठीक है, all right. Now given this understanding, given this structure of table, now you should be in a position to answer certain such hypothetical questions. Let me share one more such question. Let me give me just 1 minute. I will put 1 or 2 such questions जहाँ पे आपको hypothetical knowledge लगेगा. All right, so say for example I take this question. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा. Let's see if you are able to work on this. थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का दोनों का कंबाइंड नॉलेज लगेगा.
राइट, इसमें 53rd का तो बताओ, चलो आंसर सबसे पहले। हम्म, 53rd का शिवांग, कनिशा, प्रत्याशा एंड सानिका आपका सही है। अच्छा, उसके बाद में ठीक है, ध्रुवा, शिवांग, हाँ बात सबका ही सही आ रहा है, ठीक है। हर्ष नहीं, आपका गड़बड़ आया थोड़ा सा। सो फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर विल बी एस ब्लॉक। ठीक है, कैसे, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना किस तरीके से सोचा इसके बारे में। दैट यहाँ पर बोला जा रहा है दैट 60 इलेक्ट्रॉन्स आर इन प्लस हाफ ग्राउंड इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो इस स्टेटमेंट से मुझे क्या समझ में आएगा, दैट टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी आइदर 119, 120 और 121। ठीक है, क्योंकि अगर 60 प्लस हाफ स्पिन के हैं तो अच्छा, इसमें इनफैक्ट सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो, अच्छा चलो ठीक है, मैंने एक्चुअली पहले इस वाले स्टेटमेंट से कंक्लूड करना चाहिए दैट साई करस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई है, मतलब ये एस ऑर्बिटल में होना चाहिए, यानी कि द इलेक्ट्रॉन शुड बी पार्ट ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन वुड बी सम नोबल गैस, एंड उसके बाद में NS। ठीक है, इस NS के अंदर इट कैन बी 1 और 2। ठीक है, नाउ अभी जो थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से आप देखोगे तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका डाई पॉजिटिव आयन बनाया तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, और नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आएगा। बट अगर NS1 कॉन्फ़िगरेशन है सॉरी, NS1 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन NS से रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी इसका N-1p इलेक्ट्रॉन होगा वहां से रिमूव होगा। So there will be one unpaired electron which corresponds to this magnetic moment। ठीक है, तो यानी कि NS1 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब इसमें बोला जा रहा है 60 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका हाफ स्पिन स्टेट है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे कैन बी एज आई सेड आइदर 119, 120 और 121। ठीक है, क्योंकि अगर 60 प्लस हाफ है, जैसा हमने यहाँ डिसाइफर करा, 60 माइनस हाफ रहेंगे, या फिर 59 रहेंगे, या फिर 61 रहेंगे। ठीक है, तो इसमें इफ यू विल नोटिस कि NS1 कॉन्फ़िगरेशन इसको मैप करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा एटॉमिक नंबर 100 एंड कितना बैठेगा ये, अगर आप नोबल गैसेस को काउंट करोगे, हंड्रेड 18 तक आता है नोबल गैस, तो ये नोबल गैस 118 तक आएगा, तो ये 119 रहेगा। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ।
ठीक है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इनका आपको एटॉमिक नंबर हो कॉन्टेक्स्ट में, सो 18, देन 36, देन 54, देन 86। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो भी आएगा कॉन्फ़िगरेशन वो 118 होगा, बेसिकली 32 का जंप आएगा। ये 18 का जंप आ रहा था। ठीक है, सो नोबल गैस क्योंकि 118 रहेगा, सो जो ये NS1 कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक नंबर 119 रहेगा। सो इस केस में आपका सी ऑप्शन आंसर रहेगा। अच्छा, देन इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 के लिए U, देन सेकेंड 1 के लिए भी U, और 9 के लिए E। ठीक है, ये मैंने आई थिंक IUPAC नोमेनक्लेचर वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि IUPAC नोमेनक्लेचर्स, हाँ ये मैं जनरली भूल जाता हूँ। ये आपका आज का होमवर्क है बहुत ही सिंपल सा, बट दिस इज योर होमवर्क। रीड NCERT। चलो ठीक है, मैं थोड़ा कम आलस दिखाता हूँ। वेट, आई विल टेक इट फ्रॉम द NCERT ऑल्सो। इनफैक्ट बहुत ही सिंपल सा होता है। So all you have to do is remember the I should say the nomenclature that is given to the digits। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना that this is the nomenclature that is given to the digits, and based on it then you can give the IUPAC names of elements above 100। ठीक है, सो ये आपको यूज करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखना अपना एटॉमिक नंबर 119 आया, तो 1 के लिए द एब्रिविएशन इज U एंड द नेम इज अन। तो सेकेंड 1 जो यहाँ पर है उसके लिए भी अन। ठीक है, एंड देन 9 के लिए N। ठीक है, सो योर एटॉमिक नंबर 119 वुड बी कैसा रहेगा यहाँ पर? अन अन देन N, जो 9 है उसका N, एंड देन आखिरी में EM लगा देगा। ठीक है, ये जो एक 1 है उसके करस्पॉन्डिंग ये अन है, देन जो दूसरा 1 है उसके करस्पॉन्डिंग ये दूसरा अन है, देन ये जो 9 है उसके करस्पॉन्डिंग ये तीसरा N है, एंड देन EM is like a convention that we'll have to put EM at the end of the name। ठीक है, याद रह जाएगा। इट इज़ वेरी इजी, मतलब इट इज़ नॉट समथिंग जिसको याद करना बहुत बड़ा। ये सब आपको पता ही है ना, निल, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। इसमें क्या नया है? दिस इज क्वाइट इजी। नहीं, बाजू वाला याद नहीं करना ना, बाजू वाला तो इनसे बन जाएगा। लाइक यहाँ से यू कैन राइट ऑल ऑफ दिस, मतलब मैं ये छुपा भी दूंगा अगर, ठीक है, हाइड दिस ऑल,
एंड आई जस्ट आस्क यू टू राइट द नेम्स ऑफ दीज एटॉमिक नंबर्स. आप एक एक करके खुद से लिख सकते हो, इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं. ठीक है. हाँ, ये वाला पार्ट मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, किस तरीके से हम लोग समझ रहे हैं. दैट एक एक करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्व करना है. जो पहला इन्फॉर्मेशन है उससे क्या डिसाइफर हुआ कि एस ऑर्बिटल है. ठीक है, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से डिसाइफर हुआ. ठीक है, देन सेकंड इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, अब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से अगर एस ऑर्बिटल है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? नोबल गैस फॉलोड बाय NS1 या फिर NS2. यही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है एस ऑर्बिटल के एलिमेंट्स का. अब जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है दैट हेल्प रिजेक्ट, ठीक है, ये जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है कि डाई पॉजिटिव आइसोलेटेड आयन है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो वो मुझे NS2 को रिजेक्ट करने में हेल्प कर दिया. क्योंकि NS2 में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो ये NS2 रिमूव होने के बाद में नोबल गैस आ जाएगा. नोबल गैस में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो देयर विल बी नो मैग्नेटिक मोमेंट, सो NS2 नहीं होगा, NS1 रहेगा. ठीक है. नाउ अब NS1 रहेगा. अब उसके बाद में मैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन नोट कर रहा हूँ कि अगर 60 इलेक्ट्रॉन्स है एंड ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? अगर 60 हाफ प्लस हाफ में है तो 60 माइनस हाफ में भी हो सकते हैं, या फिर 59 भी हो सकते हैं, या फिर 61 भी हो सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से रहेगा. तो आउट ऑफ दीज थ्री पॉसिबिलिटीज आई कंक्लूडेड दैट 119 होगा. क्यों? बिकॉज ये नोबल गैस के जस्ट बाद वाला एलिमेंट है NS1 और नोबल गैस 118 होगा. तो उससे मुझे समझ में आया दैट दिस शुड बी 119. ठीक है. सो मल्टीपल डॉट्स कनेक्ट हुए यहाँ पर. इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट यू विल बी एबल टू ओनली अंडरस्टैंड एन आंसर. ठीक है, जहां पर अगर आपका आई शुड से दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट से 3 पॉसिबिलिटीज क्यों आई? क्योंकि 60 इलेक्ट्रॉन्स बोला हुआ है ना प्लस हाफ स्टेट में. अगर 60 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ स्टेट में है और कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, नोबल गैस के बाद NS में फिल हो रहा है. ठीक है, तो कैसा होगा यहाँ पर? इट कैन बी 119, 120 और 121. क्योंकि 60 प्लस हाफ के इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस हाफ के कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? या तो 60 रहेंगे, या फिर 59 रहेंगे, या फिर 61 रहेंगे. ठीक है, बट उसमें से वी कैन रिजेक्ट the other two. We can accept 119. How can we accept 119? Because if you will notice noble gas का configuration इसके just पीछे वाला होना चाहिए and that should be 118, so the atomic number should be 119. आप और भी thought process से जा सकते हो. You can also think of this solution in other ways also. This is one of the ways in which I thought of it. ठीक है. All right. Then after understanding this skeletal structure of the periodic table, ठीक है, आप लोगों को इन द नेक्स्ट लेक्चर इसमें एलिमेंट्स फिल करके बताए गए होंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टास्क, ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस skeletal structure of the modern periodic table is to remember the elements in the table, right? And along with remembering the elements, there are certain particular names that are also given to the rows and the columns. That is also something that I would have highlighted for you to remember. Now, based on the video, you would have seen which elements are the most crucial for you to remember to begin with. एक तो मैंने आपको बताया था कि S ब्लॉक पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है.
राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एस ब्लॉक आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। देन डी ब्लॉक के लिए मैंने बताया था आपको, डी ब्लॉक का फर्स्ट रो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अंदर 10 एलिमेंट्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स रहेंगे। देन पी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो भी आपको मैंने बोला था याद रहने चाहिए, ठीक है। एस और पी ब्लॉक तो पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है। डी ब्लॉक इज समथिंग जिसका फर्स्ट रो भी अगर याद रहेगा तो अभी के लिए काफी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। थोड़ा सा ये अनइवन सा बन गया, बट हाँ। देन the names of the rows: alkali metals, alkaline earth metals, ठीक है। कार्बन फैमिली, सॉरी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस, नोबल गैसेस। देन ऑक्सीजन फैमिली के और भी नाम होते हैं, लाइक कैल्कोजेंस, लाइक नाइट्रोजन फैमिली के लिए निक्टोजेंस। देन द रोज, ठीक है, उसमें यहाँ पर आपका लैंथेनाइट सीरीज शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से आपका एक्टिनाइट सीरीज शुरू होता है, एफ ब्लॉक जो अलग करके निकाल दिया है, ठीक है। डी ब्लॉक के पहले रो को 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक आर टुगेदर कॉल्ड एज representative elements. D block are called as transition elements. F block are called as inner transition elements. D block में इनफैक्ट आप नोटिस करोगे तो ये जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट नहीं कराया जाता है, ठीक है। इसका भी मैंने आपको लिखवाया होगा, उसमें वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया होगा दैट दीज डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स and as a result they are not able to form commonly colored compounds that are formed by the transition elements. So zinc, cadmium and mercury, they are not classified as transition elements. They are part of D block but not transition elements, ठीक है। so ये elements S, P and D के first row ये आपको definitely याद रखने हैं। Going forward we will be expected, ठीक है। मैं कल को बोलूँगा आर्सेनिक कहाँ पर है या फिर बिस्मथ कहाँ पर है, तो यू शुड बी एबल टू लाइक विद इन अ मैटर ऑफ 5 to 10 सेकेंड्स फिगर आउट कि अच्छा हाँ इसका ये लोकेशन होगा, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू रिमेंबर दीज, आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में भी देखा होगा, देयर आर सर्टेन निमोनिक्स व्हिच यू कैन रिमेंबर। आई एम श्योर आप लोगों ने अपने स्कूल में और भी डिफरेंट निमोनिक्स सीखे होंगे, बट द एंड ऑब्जेक्टिव इज कि आपको ये एलिमेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। if you are able to remember them then this chapter will become quite smoother, ठीक है। we will be able to understand things much better, ठीक है। now with this in mind, the next thing that we discussed was the periodic properties, ठीक है। so I think थर्ड लेक्चर के एंड में आप लोगों ने नोटिस करा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का डिस्कशन शुरू हो गया था, एंड in that before beginning to talk about the periodic properties I would have spoken about the factor of or the concept of effective nuclear charge, ठीक है। so next class में, अभी तो खैर टाइम नहीं बचा है, बट हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से पिक करूंगा। I will talk about the concept of effective nuclear charge. I will talk about its
कैलकुलेशन, ठीक है। सो इफेक्टिवली अभी देखा जाए तो 2 ही लेक्चर कवर हुए। जो थर्ड लेक्चर था उसका मेजर चंक वाज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ओनली। सो वी वर एबल टू कवर 2 lectures today with some discussion and some questions and doubts in between. However, we will in the next class talk about this concept of effective nuclear charge and continue our discussion from there. Okay. Now, I will give you one more lecture to watch for tomorrow. ठीक है, कल अपना वैसे क्लास है शाम को 7 बजे। ठीक है। Now, in order to have, in fact, आप लोग मुझे बताओ मतलब कल है कि अच्छा सैटरडे है? ओ देन ग्रेट, फिर तो ठीक है। मतलब कल नहीं है भाई, आई वाज वरीड अबाउट कि सैटरडे को, सॉरी कल रहेगा तो टाइम रहेगा नहीं रहेगा, बट हाँ अगर सैटरडे को है तो ठीक है, डेफिनेटली यू गाइस हैव टाइम विद यू। सो आई विल गिव यू वन मोर video lecture to watch which will have atomic size as a periodic property का discussion। ठीक है। So combined थर्ड लेक्चर एंड फोर्थ लेक्चर का डिस्कशन हम लोग अब सैटरडे का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें करेंगे। ठीक है। हाँ, नाउ हैविंग सेड दिस, अब सम स्टूडेंट्स हैड सर्टेन डाउट्स इन डीपीपी। ठीक है। सो अब मैं आगे का नहीं पढ़ा रहा हूँ। इफ यू हैव सर्टेन डाउट्स इन दोस डीपीपीज देन यू कैन लेट मी नो, वी विल क्विकली रैप अप दैट डिस्कशन आल्सो। तो हाँ, जैसे सुमित तुम कुछ बोल रहे हो, तुम्हें कोई पर्टिकुलर डीपीपी का क्वेश्चन में डाउट है बताओ। हाँ हाँ, द रेस्ट कैन लीव, अभी मैं आगे का नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इट इज ओनली डाउट्स फ्रॉम डीपीपी which were there. If you have some of them, so I'll discuss them. All right, DPP 21 फालतू फालतू डाउट मत पूछना सुमित, मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। ऑलराइट, सो DPP 21 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब they have the same number of electrons। ठीक है। so you do the counting of the number of electrons that would be there। ठीक है। NH3 और BH3 मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के हर एक के पास में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और बोरॉन के 5, तो कितने हो गए टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एरो छोड़ दो, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। दैट्स अ डेटिव बॉन्ड। ठीक है। So we got the total number of electrons. Now you count the number of electrons that are there in the options that are there and match कर जाएगा तो वो isoelectronic species हो जाएगा। ठीक है। Then question number 4 के बाद में, सॉरी question number 7 आप कह रहे हो, इसमें बोला जा रहा है the energy released। ठीक है, एक एलिमेंट है जो कि रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, उससे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, and that energy released is used to dissociate H2 molecules, ठीक है, into H plus and H star, where H star is an excited state in which the electron travels a path length equal to 4 times its de Broglie wavelength। ठीक है। ओके, सो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर नोटिस करना। ठीक है, ये कैसा रहेगा? यहाँ पर नोटिस करना, यू हैव 8 grams of H2। ठीक है, 8 grams of H2 मतलब यू हैव
4 moles of H2. ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, there is this reaction that is happening. ठीक है, X plus electron is giving X minus. ठीक है, एंड इससे एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, ये जो एनर्जी है ये एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने अब्सॉर्ब करी. ठीक है, एंड इट ब्रोक इनटू H प्लस आयन एंड H स्टार. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में. ठीक है, एंड इसमें इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n इक्वल टू 4. ये मैंने इसको रीड करा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अ पाथ विच इज 2 pi r, दैट इज 4 times its de Broglie wavelength. इससे आप रीड कर सकते हो दैट दिस मीन्स दैट n इज इक्वल टू 4. ठीक है, नाउ हुआ क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं नोटिस करूं कि ये जो एनर्जी यहाँ से आया होगा, ठीक है, इस रिएक्शन से, दिस वुड हैव गॉन इन 2 पार्ट्स, और इनफैक्ट इन 3 पार्ट्स. ठीक है, एक तो बॉन्ड ब्रेक करने में. ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में एक एटम को आयोनाइज करने में, आयोनाइज 1H एटम. ठीक है, एंड दूसरे को एक्साइट करने में, एक्साइट अनदर H एटम. ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करना ये वैल्यू 4.526 है. ठीक है, पर मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी इतना EV रहेगा. आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 EV रहेगा, ये भी दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का. ये एक्साइट करना का रहेगा n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 में एक्साइट करेगा, तो ये कितना रहेगा 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर 1 माइनस 1/4 स्क्वायर. ठीक है, इतना एनर्जी लगेगा. तो आपको समझ में आएगा ये एनर्जी का वैल्यू कितना रहेगा. आप इसको ऐड करो. ठीक है, कितना आ रहा है ये, यू ऐड दिस अप, 13.6 इंटू 15 डिवाइड बाई 16 प्लस 13.6 प्लस 4.526, तो ये 30.876 आ रहा है. ठीक है, यानी कि इतना ही एनर्जी रिलीज हो रहा है जब एक X का रिएक्शन हो रहा है, एक X के एटम का या मॉलिक्यूल का रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, इतना ही एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा था. तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया, दैट इफ यू विल नोटिस कि 1X, ठीक है, 1 मोल X का जब रिएक्शन होगा तब 1 मोल H2 के साथ में ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी. तो अगर 8 ग्राम है, 8 ग्राम दैट इज 4 मोल्स. अगर H2 है तो कितना मोल X लगेगा वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो. द आंसर विल बी 4 मोल्स. ठीक है, सो 4 मोल्स ऑफ X वुड बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस प्रोसेस. ठीक है, एंड देन सी पार्ट में वाई इज द अमाउंट लीस्ट बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम यही बोल रहे हैं कि सारा का सारा एनर्जी इन्हीं सब चीज़ों में जा रहा है. नथिंग इज गोइंग इन अदर फॉर्म्स. ठीक है, इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ब्रेक होने के बाद में इन एटम्स की काइनेटिक एनर्जी हो, या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी हो, तो वो सारी एनर्जी भी इसी रिएक्शन से आनी चाहिए. बट क्योंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सो इट इज द लीस्ट दैट वी हैव. ठीक है, ऑल राइट. देन इसके बाद में इसका क्या डाउट है, ऋग्वेद का है. इज देयर अ रीजन दैट वी हैवंट क्रिएटेड or are unable to create atoms with atomic number beyond 118? मतलब we are in the process, but the thing is that they become more and more unstable. The nucleus becomes more and more unstable, and as a result it decays very fast. वो radioactive रहते हैं.
देन पूर्णा का डाउट है विंडो टू जेई एडवांस्ड में इंटीजर टाइप क्वेश्चन 3। अरे बाप रे, बुकलेट में, एक मिनट, बुकलेट में विंडो टू एडवांस्ड में, वेट अ मिनट, इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 3। कहाँ गया? हाँ, ये रुक जाओ पूर्णा, इसमें गैसियस स्टेट चैप्टर का नॉलेज लगेगा, ये अभी आपको नहीं आएगा। इसमें स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये एक गैसियस स्टेट में आपको सिखाएंगे, तो फिर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अच्छा देन यश क्या बोल रहे हो, डीपीपी 20 का क्वेश्चन नंबर 10। डीपीपी 20 क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n plus l is 7। ये तुमने पहले भी पूछा था। सो यहाँ पर नोटिस करना n plus l इक्वल टू 7 के लिए हम लोग कैसे सोचेंगे। ओके, इसमें सोल्यूशन नहीं दिया क्या कुछ भी? दिया तो होगा, नहीं दिया। सो देखो n plus l, अभी n का वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है, एंड l का वैल्यू देन 0 या 0 रहेगा, ठीक है। इज दिस कॉम्बिनेशन पॉसिबल? द आंसर इज नो। n का वैल्यू 2 हो सकता है, l का वैल्यू 0 या 1 हो सकता है, इससे क्या कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है, कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0 1 2 3, तो इसमें हाँ एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि अगर n 4 है एंड l 3 है, ठीक है, तो n 4 l 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दिस विल बी 4f, ठीक है। अच्छा, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 0 1 2 3 4 हो सकता है, इसमें n इक्वल टू 5 एंड l इक्वल टू 2 एक ऑप्शन है विच विल बी 5d, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, n इक्वल टू 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। समझ में आ रहा है तुमको? तो ये 6p हो जाएगा एंड वैसे एक 7s रहेगा, तो टोटल यू कैन डू द काउंटिंग, ठीक है। ऑल राइट, देन सुमित, डीपीपी 18 का क्वेश्चन नंबर 1। In a mixture of H and He plus electrons in all H atoms and He plus are present in n equal to 4 state, find the total। तो इसमें एक इसमें कैच क्या है सुमित, इसमें जो हीलियम का 2 से 1 का ट्रांजिशन होगा और हाइड्रोजन का जो 4 से 2 का ट्रांजिशन होगा, ठीक है, उन दोनों का वेवलेंथ सेम होगा, तो वो यूनिक में काउंट नहीं होगा, तो आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। हाइड्रोजन का, हाँ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, माय बैड, सॉरी, हाइड्रोजन का 2 से 1 और हीलियम का 4 से 2, हीलियम प्लस का, हाँ राइट हर्ष, ठीक है। देन प्रत्याशा का एक्सपर्टीज अटेनर क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाला है क्या प्रत्याशा? बिकॉज वो आपको नहीं आती है अभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना।
फाइंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, वो इंटीग्रेशन नहीं आता है आपको अभी। हाँ, अब भी नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, देन DPP 18 का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल मैक्सिमम, तो नेकेड आई से बामर सीरीज दिखेगा ना बाबा? सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछो तुम। क्या है इसमें लिखा हुआ है नीचे सोल्यूशन? बामर सीरीज के विजिबल रेडिएशन रहेंगे, तो बामर सीरीज के पहले 4 विजिबल में रहेंगे, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 और 6 to 2। 4 ही लाइन दिखेंगे आपको। ठीक है, देन DPP 21 कह रहे हो तुम। DPP 21 में क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, और जो Ml इक्वल टू 0 वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। इसमें क्या है, Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और फिर m इक्वल टू 0 मतलब जितने भी s ऑर्बिटल्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो काउंट करो। इसमें क्या है हर्ष? क्या कह रहे हो श्रेयस? आंसर की में 15 दिया है। DPP 18 का तुम कह रहे हो क्वेश्चन 2 का आंसर 15 है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस फॉर that you would expect to see with naked eye? सेकंड का डी नहीं, इसमें या तो फिर आंसर की में गड़बड़ हो सकता है। सोल्यूशन तो सही लिखा है, बामर सीरीज के विजिबल रीजन में रहेंगे। ठीक है, आई थिंक किसी एक डीपी में है कुछ आंसर गड़बड़, आई डोंट रिमेम्बर विच वन। हाँ, आई थिंक शायद इसी डीपीपी में है। ठीक है, क्या कह रहे हो सुमित? DPP 19 में क्वेश्चन 9 स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। सो ये हाँ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया ना ये तो एंगुलर मोमेंटम n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। मतलब एंगुलर मोमेंटम जो रहता है L, ये तो NH/2 पाई है ना, तो ये तो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, Z के थोड़ी ना होगा। तो ये तो गलत हो गया ना, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, DPP 21 का क्वेश्चन नंबर 2। DPP 21 नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, आना चाहिए। डेल्टा के इज इक्वल टू क्यू ई, हमने बहुत बार कर लिया है क्वेश्चन, थोड़ा और फाइट मारो श्रेयस, आना चाहिए वाला। ठीक है, all right then, let's close today's lecture. I will share the recording of the next lecture also with you, so आप वो देखना, and then next lecture we will discuss both those recordings, lecture 3 का and lecture 4 का, recording 3 and recording 4. All right, चलो, thank you guys.